This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, English language instructor, and I'm sure that I must be audible to everyone, and my screen is visible to everyone. Today is your first session. Ramzan Mubarak to all of you, and this is SKH, Sir Khwaja Sibur Rahman, and I have been teaching English as a language since 2004, and I have been teaching online since June 2020. I mean to say that I have been teaching for 2 years. So I started in Ramadan. Ramadan brings blessings. So 2 years back, Ramadan brought great blessings, and like every year. And Alhamdulillah, like it's been 2 years, SKH online education started with language and now offering multiple courses to the students all over Pakistan, UAE, Saudi Arabia, wherever Pakistani students live, they join us. So first you have to learn how to use Zoom, right? Use non-verbal language in Zoom because it becomes very easy for everyone to communicate. Non-verbal language means language without words. If you have to ask any question, you just have to raise your hand. Do not interrupt in the class. Do not say, excuse me, sir, right? This is not your regular class, right? Whenever you have a question, you are always welcome to ask questions. Ask as many questions as possible, but with a discipline. How? Raise your hand. When you raise your hand, everybody also listens to your question. When I take your name, let's raise your hand. For instance, any one of you, Nadia. When I take name of Nadia, so everybody is now listening that what Nadia is going to ask. Are you getting my point? So this is why I always appreciate students that you must raise your hand before questioning or before sharing anything, right? Just do not do like this, that you unmute yourself and you interrupt the class, right? So it's better to raise your hand because I am notified. Whenever you raise your hand, I am notified. I receive a notification that somebody is raising hand and you have to listen to him or her. So, and the next thing is that मैंने आपको कोई बात समझा दी, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड समथिंग, बेटा बात समझ आई जो मैंने अभी बात कही आपको, रेज योर हैंड के हवाले से अगर आपको बात समझ आई तो आप टिक लगाकर बता दें, ये नहीं कि माइक ऑन करके जी जी सर समझ आ गई, ओके यस सर, ओ नो, नॉट लाइक दिस. You can show your thumb, yes sir. You can tick, you can simply tick. That's very good. Only 3 students have found this option. It's all very simple. Please try to find it. Okay. So let's go ahead and start today's first lecture. You may take a screenshot of this course outline. Your course is of 5 months. If you study 5 months, it is possible that you study only 1 month and disappear. Thank you very much. आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने महीने पढ़ते हैं, ठीक है ना. 5 महीने के बाद भी मेरे पास बहुत सारी चीजें, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया. मैं बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत सोच रहा हूँ कि मैं 3 महीने का कोर्स कर दूं, लेकिन आप यकीन करें, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी.
मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं 3 महीने में तमाम चीजें पढ़ा दूं। रिजल्ट ही नहीं प्रोड्यूस होता, क्योंकि ये तजर्बात 18 साल से हम कर चुके हैं। ठीक है ना। अब 18 साल के तजर्बे के बाद भी मैं फिर एक नया तजर्बा करूं तो अजीब सी बात है। तो ये बस 5 स्टेजेस है। आप ऐसा मुमकिन है कि आपने एक स्टेज कर ली फिर गायब हो गए, फिर आप आए, फिर आपने सेकंड थर्ड स्टेज कर ली फिर गायब हो गए, फिर फोर्थ और फिफ्थ कर ली फिर गायब हो गए। लेकिन इससे फायदा कुछ भी नहीं होगा, पैसे जाया हो जाएंगे। क्योंकि लैंग्वेज को तसलसल के साथ सीखा जाता है। ये नहीं कि अभी एक हम स्टेज 1 कर लेते हैं फिर 2 महीने बाद स्टेज 2। तो मुझ पर एक एहसान करें कि मुझ पर कोई एहसान ना करे। सर मेरा एक अगर सवाल है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। एड्रेस दी, मेरा एक सवाल है कि अगर इन केस में क्लास के अंदर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मुझे जाना पड़े, तो क्या मैं क्लास स्किप करके नाइट की क्लासेस को कर सकती हूँ ज्वाइन? जब दिल चाहे कर सकती हो आप। अभी यानी आप कि मैं, नई मेहमान आ गए, आपने फौरन डिस्कनेक्ट कर दिया, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं आपको कुछ कहेगा। आप रात वाला सेशन ले लो, सेम टेलीकास्ट थैंक यू होगा। सो मच, थैंक यस यू। Satya, do you have any question? सर मेरा एक और सवाल है आपसे। हैंड रेस नहीं कर रही आप, ऐसे ही सवाल करिए। अभी हमने यही सिखाया था कि हैंड रेस करके सवाल करना है, लेकिन हैंड रेस का ठीक है, ऑप्शन सॉरी। आपको मिल नहीं रहा शायद। नहीं नहीं है, सॉरी। अच्छा मेरा ये सवाल है कि अगर इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करना हो तो फिर वो हमें ये प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा जो इस दफा हमने किए? जी वही मंथली फीस हमारी 2,000 रुपए है हर कोर्स। आप नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू करेंगे, अपनी मंथली फीस सबमिट करवाइए, आगे चलिए। ठीक है ना। और सर ये मुकम्मल कोर्स जो है वो 3 मंथ का है कि 5 मंथ का है? बेटा मैंने वही बात तो समझाई, माशाल्लाह इतने आप लोग समझदार लोग हैं। मुझे बताओ मैं लैंग्वेज कैसे 3 महीने में मुकम्मल करा सकता हूँ? मैं 1 महीने यस आई। फाउंडेशन मुकम्मल करवा सकता हूँ ना। आप लोग खुद सोचा करें कि 3 मंथ्स में लैंग्वेज, मेरी रिकॉर्डिंग्स आप लोग देखते नहीं है, मैं आप लोगों को वीडियोस भेजता हूँ। वो वीडियो अगर कहें तो मैं पहले प्ले कर दूं, मैंने हर बच्चे को व्हाट्सएप की। उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा, मैं प्ले कर रहा हूँ वो वीडियो, ताकि आप लोग सुन लें कि मेरी बात क्या थी। मैं हमेशा हर बात बहुत ईमानदारी के साथ लोगों को बता देता हूँ कि भाई देखिए, अगर लैंग्वेज सीखनी है तो आपके पास कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 5 महीने, जब जहनी तौर पे तैयार हो ना 3 महीने पढ़ने के लिए, तो मुझे ज्वाइन करें। 3 महीने में आप जब पढ़ेंगे ना तो चौथा और पांचवा महीना आपको अवेल करेंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ये करना है। आप कहेंगे नहीं सर, जब 3 महीने आपके साथ चले हैं और 3 महीने में रिजल्ट जो मिले, हम तो आगे जाएंगे, हम तो पूरा पूरा कोर्स करेंगे। ठीक है ना। देखते हैं वो वीडियो आपके सामने हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रफ्तार से आप स्टार्ट ले सकते हैं। कम से कम आपको 3 महीने स्पेंड करने पड़ेंगे, जब जाकर आपका इंग्लिश मुकम्मल होगा। 1 महीने में अंग्रेजी नहीं आती, 1 महीने में हाँ और कुछ आ जाता है, लेकिन इंग्लिश आप 1 महीने में नहीं सीख सकते। आई आवाज? मैंने कहा था कि 1 महीने में बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन अंग्रेजी नहीं सीख सकते। कम से कम 3 मंथ्स, क्योंकि एक लेवल आपका मुकम्मल हो जाता है, आप एक लेवल करके जा सकते हैं, सर्टिफिकेट लीजिए, अल्लाह हाफिज। ठीक है। वो आगे पढ़ना है तो फिर इंटर, मैट्रिक के बाद इंटर, इंटर के बाद बैचलर्स, बैचलर्स के बाद मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, फिर खत्म गया, एक और पीएचडी कर ले। तो हम लैंग्वेज कैसे खत्म हो जाएगी? लैंग्वेज नेवर एंड्स बेटा। 5 महीने में के बाद भी आपका कोर्स मुकम्मल नहीं होगा। सर आज भी पढ़ते हैं, 18 साल पढ़ाने के बाद आज भी सर पढ़ते हैं, ग्रामर बुक्स आज भी मुताला करते हैं। ठीक है ना। तो लैंग्वेज कोर्स नेवर एंड्स। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कोर्स की डेडलाइन चाहिए, तो भाई 3 मंथ्स है। आप स्टेज 1 2 3 करके अल्लाह हाफिज। आगे पढ़ना है लेवल 2 में चले जाइए, स्टेज 4 5 और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना। पहले स्टेज 1 तो कर ले, लोग लेवल 2 से आगे जाते ही नहीं, लेवल 2 वाले बहुत कम होते हैं। ठीक है ना। तो बहरहाल आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये आपने स्क्रीनशॉट ले ले पूरा कोर्स आउटलाइन का प्लीज। आई एम जस्ट, मटेरियल आपके पास फॉरवर्ड होने वाला है,
आज की इंशाल्लाह तारीख में फॉरवर्ड हो जाएगा। फाउंडेशन लेवल अभी आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, इसके नोट्स आपको फॉरवर्ड हो जाएंगे। टेंसेस उसके बाद पढ़ेंगे, उसके नोट्स अलग है, मॉडल वर्ब्स के मटेरियल अलग है, कंडीशनर्स का अलग है, ये सबके नोट्स अलग आपको जैसे जैसे आप आगे चलते रहेंगे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। उसके बाद वर्कबुक 1 2 3 मेरी टोटल 5 वर्कबुक्स हैं। आपको आज पहली वर्कबुक विद आंसर की इशू हो जाएगी, ठीक है ना, ये आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगी। आप इसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहे तो आप निकलवा लीजिए। पहला वादा कर ले मुझसे आ जाइए तमाम स्टूडेंट्स। परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। जी अतिया बोले सवाल। सर मैंने ये कहना था कि जो इंस्टीट्यूट है वो इधर इतने बैनर लगाए होते हैं 1 मंथ फिर तो वो स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ ही बना रहे हैं ना सब कि 1 महीने में हम कैसे सीख सकते हैं जब हम इतने सालों में नहीं सीख पाए स्कूल्स में या कॉलेज में जाके। ऐसा ही है बेटा, एक महीने में मुझसे बहुत सारी ऑफर्स आई कि सर रमजान में 1 महीने का कोर्स स्टार्ट कर ले, तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, मैंने कहा देखिए 1 महीने में ये कंफर्म है जन्नत मिल जाएगी, अगर रमजान में इबादत कर ली कंफर्म है जन्नत मिल जाएगी, लेकिन अंग्रेजी कंफर्म नहीं आएगी। तो आप मुझ पर एक एहसान करें, कोई एहसान ना करें, आप इबादत करें, लैंग्वेज को छोड़ें। 1 महीने में अंग्रेजी नहीं आती, हाँ रमजान से स्टार्ट ले ले, अल्लाह से दुआ करें कि ये कोर्स आपके लिए बाइस रहमत बन जाए और बस आप इससे रोजगार आपको मिल सकता है बेटा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप यकीन करें, अगर आप 3 to 5 months दिल लगाकर वक्त लगाकर इस कोर्स को करें यार, आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर देंगे। मैं तो ट्रेनर हूँ, आई ट्रेन माई स्टूडेंट्स, मेरे साथ स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, मैं गाइड करता हूँ लोगों को कि आप किस तरह से ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो मैं ये आपके पास ये एक स्किल है, इसको सीखें 3 to 5 months, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, कमाने के लिए भी सीखें। अगर आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो गई विद इन 5 months यू विल स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन। मैं हूँ गाइड करने वाला, मैं बताऊंगा कैसे ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हो। मटेरियल आपको मिल रहा है, आप अपना मटेरियल डिजाइन करें। जब जिस तरह से सर ने अपना मटेरियल डिजाइन किया, आप अपना मटेरियल डिजाइन करें। आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए। आप लोगों को स्किल्स के कोर्सेज फ्री करवाए जाते हैं। रमजान में आप लोगों के पास टाइम कम है इसलिए हम ऑफर नहीं कर रहे। रमजान के बाद आपके पास एमएस ऑफिस का कोर्स आपको हम फ्री करवाते हैं, आपको वेब डेवलपमेंट फ्री करवाते हैं, वीडियो एडिटिंग आपके लिए फ्री होता है, कंटेंट राइटिंग फ्री होता है। तो जब रमजान के बाद आप लोग आएंगे तो ये कोर्सेज भी आप लोग करेंगे, साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, स्किल्स डेवलपमेंट के कोर्सेज फ्री करो, और 5 महीने बाद बेटा ऑनलाइन घर बैठ के कमाओ। यकीन नहीं आ रहा, मेरे साथ पढ़ते रहो, यकीन आ जाएगा। परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की चाबी है। तमाम स्टूडेंट्स अपने आप से एक बात वादा कर लें कि तमाम स्टूडेंट्स हर सूरत रेगुलर रहेंगे, कोई छुट्टी नहीं करेगा, कोई किसी सूरत छुट्टी नहीं करेगा। अगर दोपहर की क्लास मिस हो जाए तो रात की क्लास ले ले, तबीयत खराब है तो चले डिस्कशन क्लास की मिस करने की इजाजत है अगर तबीयत खराब है, लेकिन ग्रामर और क्लास मिस मत कीजिए। कि जो मेरी क्लास है 2 से 3 और रात में 10 से 11, इनमें से कोई एक क्लास आपने ले ली काफी है। डिस्कशन क्लास आप दोनों लेना चाहे एक्सलेंट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। आप पूरे दिन में 3 घंटे पढ़ सकते हैं, अभी 2 से 3, उसके बाद आपने 3 से 4। अच्छा उस 3 से 4 में अब आपकी मर्जी, आप बोले सुने, इट्स अप टू यू। मैंने सिर्फ वो स्पेशली डिस्कशन में आप लोगों को ही रखा है, पुराने स्टूडेंट्स को मैंने प्लेटफॉर्म ही अलग कर दिया, क्लास चल रही है उनकी डिस्कशन। मैं चाहता तो मैं मर्ज करके भी लगा सकता था, लेकिन नहीं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू इम्प्रूव इन 1 month। 1 महीने में आपको इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आ गई, आप कहेंगे नहीं मिल गया जो चाहिए था, जो मिल गया वो चाहिए था, तो बस फिर आप खुद ही आगे चलेंगे, हमें कहने की जरूरत नहीं है जैसे दूसरे बच्चे चलते। डोंट बंक ऑफ, डोंट टेक अ डे ऑफ। बंक ऑफ का मतलब टुल्ला मारना, छुट्टी नहीं करनी है, टुल्ला नहीं मारना है। और उसके बाद आपके पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गया है, स्पेंड एटलीस्ट, मैंने कहा है डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाए। डोंट bunk off your grammar, spoken and discussion sessions. Spend at least 3 hours.
इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू इन रमजान, अगर आपके लिए मुमकिन है, आप निकाल सकते हैं वक्त, तो बहुत अच्छी बात है। माइंडसेट अपना एक जहन बना ले, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। कोई ये ना सोचे मैं नहीं कर सकती, कोई ये ना सोचे कि मैं नहीं कर सकती। हर बच्चा ये सोचे मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अगर आप ये सोचे कि मैं नहीं कर सकती, तो बेटा बस फिर आप कभी भी नहीं कर सकते। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, और कभी ये ना सोचे कि मेरी तो इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रही है। हमेशा ये सोचे आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छी होती जा रही हूँ। अब मैं अंग्रेजी में अच्छी होती जा रही हूँ, जब इंसान ये सोचता है तो वैसा होता होता है उसकी जिंदगी में। इंसान जो सोचता है वो होता है। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। अगर मैं ये कह रहा हूँ आई एम कॉन्फिडेंट, इसका मतलब क्या है? मेरी सोच में ये बात जा रही है, आई एम द बेस्ट। हर इंसान ये सोचे, जब आप अच्छा सोचते ना तो अच्छा होता है। इस बात पे यकीन है आप लोगों का? टिक लगा के बताइएगा कि इंसान जो सोचता है उसको मिलता है। इस बात पर यकीन है? इस बात पर यकीन है कि इंसान जो सोचता है वो उसको मिलता है? नहीं? हाथ उठाकर बताइए। 6 लोगों ने कहा हाँ है, 7 लोगों ने कहा हाँ है बिल्कुल है। तो बेटा इस बात पे पूरा यकीन रखें कि इंसान जो सोचता है ना उसको मिलता है। और वाकई आपको क्या लगता है, ये एक ऑनलाइन एकेडमी क्या कोविड ने शुरू करा दी? ये सोच का हिस्सा था। 2016 से ये सोच में था कि अपना अपना काम करेगा, अपना इदारा खोलेगा। और 2019 में फिजिकल इदारा खोला भी, लेकिन फिर कोविड आ गया। कोविड में सब बंद हो गया। लेकिन क्या हमने अपनी हिम्मत हार गए? नहीं। घबराना नहीं, घबराना नहीं, हिम्मत रखनी है। आई एम टेलिंग यू दैट यू विल गेट सक्सेस। हर डर के पीछे जीत होती है, मैंने कहीं सुना है। राइट? wherever wherever a fear, there is a success. So success comes with fear. बहुत डर लगता है आपको, लेकिन उस डर के बाद जीत होती है। मुझे बहुत डर लगा था जब मैंने ऑनलाइन काम करना शुरू किया था। आप यकीन करें, वाकई बहुत डर लगा था कि क्या होगा। और फिर क्या हुआ आपके साथ। तो डरना नहीं है आपको। अच्छा देखिए, कुछ लोग बहुत घबरा रहे हैं। ईमानदारी से बताइएगा हाथ उठाकर, इंग्लिश से घबराता कौन? ईमानदारी से, इंग्लिश से घबराता कौन? सर इंग्लिश जो ना, मतलब कोई सामने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे तो शर्म शर्म से पानी पानी हो जाए यार। बता देखो, नहीं, ऐसा नहीं करता। घबराना नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, और ना परेशान होना है, ना इसको एक मसला समझना है। मैं एक बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा हूँ। आप सब घर में दूध को बॉईल करते होंगे ना? आप सारे लोग घर में दूध को बॉईल करते होंगे। अच्छा, दूध बॉईल नहीं होता। एम आई राइट और नॉट? दूध बॉईल नहीं हो रहा होता। हम सर पे खड़े हुए होते हैं उसके, क्या है उबलता ही नहीं है, इतनी देर हो गई चूल्हे पे खड़े खड़े, गर्मी है। सही कह रहा हूँ? यही सोच आ रही होती है, उबल के ही नहीं दे रहा, हम खड़े हुए उबल ही नहीं रहा। भाई क्या है, आप देख ले, मैं जा रही हूँ। अब थोड़ी देर के लिए आप कमरे में जाती हैं, थोड़ी देर के लिए आप हम टीवी पर एक आखिरी एपिसोड देख रही होती है। और फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? पीछे से आवाज आती है अम्मा की चिल्लाने की, दूध उबल गया। ऐसा कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका है या होता है जनरली, कि अगर हम थोड़ी देर के लिए कमरे में चले जाते तो दूध कंफर्म उबल जाता है, और सामने खड़े रहो तो उबलता नहीं। ये एक फिलॉसफी है। एक फिलोसफर ने अपनी
किताब के अंदर यही बात लिखी थी और फिर एक बात समझाई थी कि देखिए, जब आप मसले के बारे में मसले सोचते रहते हैं, जब आप मसले के बारे में सोचते रहते हैं तो क्या होता है, वो मसला मसला बना रहता है, वो मसला हल ही नहीं होता है। आप दूध के पास खड़े थे, एक मसला था, आपने थोड़ी देर के लिए उस मसले के बारे में सोचना छोड़ दिया, लेकिन आपने दूध का चूल्हा बंद नहीं किया है, चूल्हे पे दूध रखा हुआ है और आप वहां से चले गए। असल काम ये था कि चूल्हा जला दो, दूध रख दो और वहां से चले जाओ और तुम्हारा मसला हल हो गया। यही चीज है इंसान की जिंदगी में लैंग्वेज सीखने के हवाले से या कोई भी काम करने के हवाले से, कि आपको स्टार्ट लेना जरूरी होता है। आपने दूध को चूल्हे पे रख दिया, यानी कि आपने लैंग्वेज क्लास में एडमिशन ले लिया है। अब चूल्हा जो जलाया जा रहा है वो आपके 2 और 3 घंटे। अब आप मुझे ये बताइए, एक और मेरा आपसे सवाल, अगर मैं चूल्हे की आंच को हल्का कर दूं तो दूध जल्दी उबलेगा या देर से उबलेगा? कॉमन सेंस है, देर से उबलेगा, लेकिन उबलेगा जरूर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये सारे फिलोसोफर ने अपनी बातें लिखी थी कि आपने आंच को हल्का कर दिया है, उबलेगा जरूर लेकिन देर से। आपने लैंग्वेज क्लास में एडमिशन ले लिया और आप 1 घंटा स्पेंड कर रहे हैं, आधा घंटा दे रहे हैं लैंग्वेज को, आपको लैंग्वेज आएगी जरूर लेकिन वक्त लेगी। आ गई बात समझ मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है ना? आपने लैंग्वेज क्लास में एडमिशन ले लिया और अब जनाब आप जो है उसमें अब आप जो है वो टाइम नहीं दे रहे, तो यू हैव टू स्पेंड टाइम। आपको चूल्हे की आंच को फुल कर देना है, जितना आप चूल्हे के अंदर कैपेसिटी है, जितनी आप में कैपेसिटी है यार, दे दो अपना मैक्सिमम टाइम। सिर्फ जिंदगी में 1 महीने, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तो मांग रहा हूँ, कौन सी पूरी जिंदगी का वक्त मांगा है? आ जाएगी तब्दीली यार, तुम लोगों के अंदर बदल जाओगे, तुम लोग, जिंदगी बदल जाएगी बहुत सारे लोगों की। लैंग्वेज टीचर्स बन जाओगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दोगे, दरवाजे खुल जाएंगे रोजगार के। तुम लोग सिर्फ सोच रहे हो कि हमें लैंग्वेज सीखनी है। मैं लैंग्वेज को बहुत वाइड एंगल से देखता हूँ। लैंग्वेज आपने सीख ली, यू एंटर टू द नेक्स्ट वर्ल्ड, यू ओपन द डोर्स ऑफ सक्सेस। बिलीव इन मी, दिस इज द रियलिटी। मेरी जिंदगी में सारी तब्दीलियां लैंग्वेज से ही है, और तो मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ मैंने लैंग्वेज को सीखा। और लैंग्वेज को सीख कर आज जितने भी काम किए वो सिर्फ लैंग्वेज के बलबूते पर किए। तो बेटा, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वर्क वेरी हार्ड, टू बी रेगुलर, टू बी पंक्चुअल, टू बी सिंसियर, टू बी लॉयल, टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी रेगुलर। ठीक है ना? आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, लेकिन मसले के बारे में नहीं सोचना है। आपने एक काम बहुत अच्छा कर लिया, आपने एडमिशन ले लिया, आपने एक काम बहुत अच्छा कर दिया, आपने चूल्हे की आंच को तेज कर देना है, 2 घंटे कम से कम क्लास लेनी, उबलेगा ये दूध, 1 महीने में आपको रिजल्ट सामने नजर आ जाएगा। ठीक है ना? परेशान नहीं होना है। और दूसरी चीज ये ना हो कि पतीली नीचे रखकर चले जाए, चूल्हा जल रहा है। क्या मतलब सर? मतलब आप आईडी लॉगिन करके चले गए, अक्सर ऐसा होता है, जूम की क्लास में आए, लॉगिन की और जनाब चले गए। ये नहीं करना भाई, ये नहीं करना। आपको लाजमी तौर पर क्लास का हिस्सा बनना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। if you are participating actively, I am telling you that you will have a very good time in this session. आगे तमाम स्टूडेंट्स के बातें समझ, ठीक है ना? अब हम आगे चल रहे हैं। थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट। कुछ करने के बारे में सोचना ही कामयाबी की पहली चाबी है। अगर आप
सोच ले आज, I will speak English in 21 days. सोच ले आप ये, I will speak English in 21 days. मैं 21 दिन के अंदर अंग्रेजी बोलूंगा। I will speak English in 21 days. ये सोच में ले आए सर 21 दिन अंग्रेजी, बस ये हमारा फॉर्मूला है और वाकई ये काम करता है। इंशाल्लाह लगा दिया ना, 21 दिन अंग्रेजी in 21 days you will see that you will change yourself. लेकिन ऐसी पहले तो ये बात सोच में होनी चाहिए, ये नहीं देखते 21 दिन बाद क्या होता है, क्या जादू होगा। भाई आप सोचे तो पहले। थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट। आई विल स्पीक इंग्लिश इन 21 days. I can speak in English. I am getting better at English. I am confident. I am the best. I can do it. ये सोच में तो लेकर आए, फिर देखें जिंदगी कैसे बदले। ठीक है ना। एक वक्त था मेरे पास गाड़ी नहीं थी, आज कौन सी गाड़ी नहीं है मेरे पास। सोचता था गाड़ियों में सफर करूंगा, हर गाड़ी का एक अलग ड्राइवर है। एक फोन कॉल पर मेरे पास आता है, आज अल्लाह ने इतना दिया। देखिए इंसान जो सोचता है उसको वो मिलता है। अब वो किसी तरीके से भी मिले, अल्लाह पाक असबाब बना दे तो इंसान की सोच से बाहर है चीज। भाई करीब आ गया, अब एक और आ गई, इन ड्राइव आ गया, उबर आ गया, इतनी गाड़ियां। मतलब एक वक्त में अभी हम एक दफा रिश्तेदार आए हुए थे, जाना था, मैं सबके मोबाइल से लिए, सबके मोबाइल से करीब मगर लाइन से बिजनेस क्लास गाड़ी होने का। मैं भाई तो लाइन लगा दी गाड़ियों में। मैंने कहा हाँ किराया आप लोगों को देना होगा, चलते सीधे। सब रिश्तेदार आए हुए थे, सब कहते कैसे जाए, सब गाड़ी में जाएंगे भाई बिजनेस क्लास, सबके मोबाइल फोन से बिजनेस क्लास उठा दी। ये होता है, मतलब इंसान जो सोचता है उसको मिल जाता है, जैसे अल्लाह पाक असबाब बनाते हैं। तो आप बेटा, आपके लिए एक असबाब बन गया है, आपको ऑनलाइन सीखने का मौका मिल गया है। कल मैंने एक सवाल किया था कि आज से पहले कितने लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, तो मेरे पास जवाब 2 लोगों के आए थे, एक सादियत थी और एक समीर थी, कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली। इसके अलावा किसी ने कभी कोई ऑनलाइन क्लास नहीं ली। तो अब आपके लिए एक असबाब, आपने सोचा तो होगा ना कि यार मैं लैंग्वेज को इम्प्रूव करूंगी, देख ले वसीला बन गया, असबाब बन गया, आपको घर बैठे क्लास मिल गई। तो इंशाल्लाह यू विल इम्प्रूव इंग्लिश। इतनी मोटिवेशन मेरे ख्याल से महीने के लिए काफी है ना। चले, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वेरी फर्स्ट लेक्चर। और समझ नहीं आ रहा है, एक लैपटॉप, एक क्लास स्टार्ट हुई और एक लैपटॉप हमारा बहुत हो गया, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। अल्लाह खैर करे। चलिए, साउंड, पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये 6 बातें आपके सामने, तमाम स्टूडेंट्स को बहुत गौर से तवज्जो के साथ लेक्चर को सुनना है। पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है, सर हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कैसे करें, हम कौन सी चीजों को पढ़ें। ग्रामर पढ़ना नहीं चाहते, क्यों? दे हैव बीन स्टडीइंग ग्रामर सिंस स्कूल लाइफ। इन 5-6 चीजों में से आपको एक चीज से सबसे ज्यादा नफरत है, वो है ग्रामर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हैंड रेज करके बताइएगा। जी सर, यू आर राइट। टिक लगा के भी बता सकते हैं, यू आर राइट सर। आई डोंट वांट ग्रामर सर, आई हेट ग्रामर। असल में ग्रामर से नफरत पता है क्यों हुई? ग्रामर से नफरत होने की वजह ये है कि ग्रामर ने हमें कुछ दिया नहीं। हमारे स्कूल लाइफ में हमें क्या आया? कुछ भी नहीं आया। और जिस तरह से हमें ग्रामर पढ़ाई गई, we learned nothing. We are still unable to write English. We are still unable to speak in English. We have poor listening. So what is the use of studying grammar, sir? You are absolutely right. What is the use of studying grammar? It gave us nothing. It gave us nothing. कुछ भी नहीं दिया इसने। लेकिन देखिए
सिर्फ एक चीज को बेस बनाकर पढ़ना अक्लमंदी नहीं है। हम कहते हैं कि इन 6 चीजों को आप लेकर चले, then you will improve your English. So number 1, sound, pronunciations. How many of you want to improve their pronunciation? How many of you want to improve your pronunciation? आप में से कितने लोग ऐसे जो अपने pronunciations को improve करना चाहते हैं within a week, और वो भी एक हफ्ते के अंदर? Is it possible, sir? मैंने आपसे एक बात कही थी, लैंग्वेज लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस में बहुत फास्ट है। आप जो सोच नहीं सकते वो हो सकता है। पहले हम हज के लिए लोग जाते थे, 2-2 महीने पहले निकलते थे, अब 2-4 घंटे पहले निकलते हैं और पहुंच जाते हैं जद्दा। बेटा लैंग्वेज में भी ऐसा ही कुछ हो गया है। मुझे याद है मैंने 2004 में प्रोनाउंसिएशंस जब मैं सीख रहा था, तो हम लोग जब प्रोनाउंसिएशन सीखना चाह रहे थे तो हम लोगों ने आईपीए को पढ़ा था, आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। हमने आईपीए को पढ़ा था, साउंड्स को पढ़ा था। साउंड्स क्या है? देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमने इनको बाकायदा पढ़ा। अब सुनना, पढ़ने के बाद फिर हमने एक एक वर्ड को पेपर एडिशन डिक्शनरी में देखा, एक एक वर्ड को बाकायदा तौर पर पेपर एडिशन डिक्शनरी में देखा कि इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है। हमारे पास कोई ऑडियो डिवाइस नहीं थी, हमारे पास कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, मोबाइल फोन्स भी नहीं थे हमारे पास। सो वी हैड नो फैसिलिटी, वी हैड नो सोर्स ऑफ लर्निंग, ओनली पेपर एडिशन वी हैड ओनली डिक्शनरी, सिर्फ डिक्शनरी हमारे पास होती थी। आप लोग बहुत खुश नसीब है that you have everything which a person needs for learning and you can learn faster. अब आपको उतना वक्त नहीं लगाना पड़ेगा जितना वक्त हमने लगाया था सीखने में। हमने पहले 44 साउंड्स को टीचर से सीखा, उसकी ड्रिल्स करी, प्रैक्टिस करी। आपको ये 44 साउंड सीखने के लिए 3 मिनट काफी है। 3 मिनट के अंदर आपके कानों के अंदर चले जाएंगे 44 साउंड्स। दिमाग में जाने में मुझे नहीं पता कितना वक्त लगेगा, हर इंसान का दिमाग के लेवल्स डिफरेंट होते हैं, बट इन 3 मिनट्स यू विल लिसन टू 44 साउंड्स। और ये जो 44 साउंड्स है, आपको हैरत होगी that we have 26 letters and those 26 letters have 44 sounds in English language. और ये बात भी जान के शायद आपको हैरानगी हो कि there are 5 vowels and they have 20 vowel sounds. Oh my God! 5 vowels, अच्छा vowels आप लोग की जबान में vowels, हमारी जबान में vowels. There are 5 vowels and 20 sounds. Oh my gosh. How is it possible, sir? I don't know. But Gora has given us 20 sounds with 5 vowels. उसके बाद देखिए consonants. There are 21 consonants and 24 sounds. 21 consonants होते हैं आपके पास, उसकी sounds 24 है। Sir, is it possible to listen all these 44 sounds? Yes, it is possible. It is possible. आपका पहले वीक का जो टारगेट है, ये देखिएगा, आप लोगों ने शायद नोट ना किया हो यहाँ पर। आपका जो टारगेट है पहला, वो क्या है? प्रोनाउंसिएशन। इस हफ्ते का जो टारगेट है, आप प्रोनाउंसिएशन पर ही काम करेंगे। मैं जिस तरह से गाइड कर रहा हूं उस तरह से चलिएगा, प्लीज 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 प्लीज। मेरा हर हफ्ते का एक टारगेट होगा। इस हफ्ते का टारगेट मैंने आपको दिया है प्रोनाउंसिएशंस। बाकी तुम डिस्कशन क्लास के अंदर अपनी लिसनिंग करो, स्पीकिंग करो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मेरा फर्स्ट टारगेट है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशंस पे हम काम करेंगे। अगर आपने अच्छा सर ये मुमकिन है 1 हफ्ते में प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाए? अरे बिल्कुल मुमकिन है, 6 घंटे में मुमकिन है। डिपेंड करता है आपके दिमाग पर, ठीक है ना?
So 6 days challenge आपको मिलेगा that you can improve your pronunciations in 6 days. How is it possible? You will come to know. फिर next चीज है बेटा syntax. कल मेरी जो लेक्चर होगा साउंड पर, पूरी क्लास साउंड पर होगी कल, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीक का टारगेट आ रहा है वो है सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब। और आप बहुत सारे राज आपको पता चलेंगे। सर आप क्या ये बता सकते हैं कि हमारी अंग्रेजी में गलती क्या होती है? हमारी अंग्रेजी के साथ ऐसा क्या हुआ है कि हम जुमले जोड़ ही नहीं पाते? सर यकीन करें, दिमाग में सब कुछ होता है लेकिन वो जबान पर नहीं आते अल्फाज। कितने लोगों की ये शिकायत है। सर दिमाग, पढ़ी लिखी हूँ सर, डबल मास्टर्स किया, मास्टर्स किया है, अल्फाज मेरे दिमाग पर है, जबान पर है, लेकिन सर वो दिमाग में जबान पर जुड़ ही नहीं रहे सर। वो जो एक सॉल्यूशन होता है ना सर, वो नहीं। बाकी लोग तो कोई हाथ नहीं उठा रहा, सब एक ही कह रही है। बाकी लोग तो अभी बिल्कुल ही रिवर्स लगा हुआ है। ग्रामर, सर ग्रामर आती है हमें, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का रिवायती ग्रामर आती है। बेटा आपको ग्रामर भी नहीं आती, क्योंकि जिस सिस्टम से आप लोग पढ़कर आए ना, उस सिस्टम से हमने भी पढ़ा है। और जिस तरह से ग्रामर हमें पढ़ाई जाती है, तो हमारी ग्रामर तो टेंसेस पर आके खत्म हो जाती है, उसके आगे कोई पटरी नहीं है, हमारा ट्रैक ही नहीं है, तो खत्म भाई, दुनिया खत्म टेंसेस पर। और टेंसेस पढ़ाने का जो तरीकेकार है, अल्लाह माफ करे, ओ माय गॉड। टेंसेस को आपने ट्रांसलेशन के लिए पढ़ा होगा, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, ट्रांसलेशन को हमने इसलिए पढ़ा, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, इसलिए हमने ट्रांसलेशन पढ़ी कि हम जो है इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। ट्रांसलेशन आती थी पेपर के अंदर। हमें कभी लैंग्वेज के एतबार से हमारे स्कूल में लैंग्वेज, इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज भी पढ़ाया गया, इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया। हमें कभी बुलवाया नहीं गया हमारे स्कूलिंग सिस्टम्स को। हमारे स्कूलिंग सिस्टम्स में ये सिस्टम ही नहीं है, पता नहीं कब आएगा। हाँ, कुछ एलीट क्लास के स्कूल हैं, उनमें बच्चे बचपन से अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, उनका स्टैंडर्ड ही अलग है। लेकिन एक मेजॉरिटी देखे ना, मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी एक एवरेज अवाम है, उसको देखे वो किस तरह के स्कूल्स में जा रही है। दैट्स व्हाई वी आर पुअर इन इंग्लिश। हमारी अंग्रेजी का तो कोई स्टैंडर्ड दुनिया में है ही नहीं, है ही नहीं। सबसे टॉप पर चल रही है अमेरिकन इंग्लिश, फिर ब्रिटिश इंग्लिश, फिर ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, फिर कैनेडियन इंग्लिश, फिर न्यूजीलैंडर्स इंग्लिश। इंडियंस का भी स्टैंडर्ड आता है, बांग्लादेशियों का भी आ जाता है अब तो स्टैंडर्ड। लेकिन पाकिस्तान का स्टैंडर्ड लिस्ट में नाम ही नहीं है दूर दूर तक। They have no standard. You don't, वो कहते हैं you don't speak English, you speak Pinglish, Pakistani English. It means full of mistakes, full of mistakes, full of errors. आगे चलते, अब आ जाइए आपके पास चौथी चीज, ग्रामर। लेकिन बेटा पढ़नी पड़ेगी, ग्रामर के बगैर सही ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। दिस इज अनदर पिलर। द फोर्थ पिलर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये तो आज से आपकी शुरू हो जाएगी। आज डिस्कशन क्लास में, जस्ट आफ्टर माय क्लास, मिस मरियम विल ज्वाइन यू just after my class, and you will start this obviously you will start listening, you will start speaking. Listening is the key, listening is the key, listening is the key. जो स्टूडेंट्स अंग्रेजी नहीं बोल पाते, मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लिसनिंग शुरू कर दे भाई। keep listening, keep listening, keep listening, and you will start speaking. ये साबित कर दिया रिसर्चर्स ने। You learn language by listening. You start listening to Chinese, you will start speaking it after a few days. It has been proved. Listening is speaking. Listening is learning. A listener has much more knowledge as compared to speaker. So listening is something very important for all of you. अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? Listening कर रहे हैं. You are listening, you are learning. And when you are listening, you will definitely start speaking, right? सर अब कोई बच्चे कहते हैं मुझे अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी है, मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ, मैं लेट्स टॉक इन इंग्लिश।
No, actually I want to improve my writing. आओ पहले इंग्लिश में बात तो करो. Let's talk in English. No sir, असल में आप समझ नहीं रहे. देखिए मेरा मसला स्पीकिंग नहीं है. मैं जहाँ काम करती हूँ ना वहाँ मुझे लिखना होता है. Okay, let's talk in English first. सर आप अजीब आदमी है. अबे भाई अजीब बातें तुम कर रहे हो. लैंग्वेज का एक रूल होता है, एक मैकेनिज्म होता है, उसको पाकिस्तानी हमारे स्टूडेंट समझते ही नहीं. एक जबान को पहले सुना जाता है, उसके बाद उसको बोला जाता है, फिर उसको पढ़ा जाता है, फिर उसको लिखा जाता है. किसी भी काबिल आदमी से जाकर लैंग्वेज सीखने के आदाब सीख लो तो यही कहेगा स्टार्ट लिसनिंग फर्स्ट. पहले तुम इसको सुनना तो शुरू करो, तुम बोलना तो शुरू करो, उसके बाद ही रीडिंग पे जाओगे, उसके बाद ही राइटिंग पे जाओगे. तो यू विल बिकम अ गुड राइटर इफ यू आर अ गुड रीडर. अब जैसे मैं एक मिसाल दे दूं, आपने कहा सर मुझे ऐसे लिखना है. मैं कहा अच्छा आप रीड क्या करती हो? सर मैं तो फेसबुक बस रीड कर रही होती हूँ. तो बस बेटा फिर तुम फेसबुक ही लिख सकती हो. फॉर राइटिंग यू हैव टू बी अ गुड रीडर. आप जो लिखना चाहते हैं मैं कहता हूँ आप उसको पढ़ना शुरू कर दो. एक जो शायर होता है, पोइट जो होता है, वो ऑब्वियसली पोइट्री पढ़ता भी होगा ना, जब तो वो शायर भी है, जब तो वो लिखता भी है. जो भी लिखने वाले हैं आप उनको जरा उनकी हैबिट्स को जाकर स्टडी करें. दे आर वेरी गुड रीडर्स. दे रीड बुक्स. दैट्स व्हाई दे आर राइटर्स ऑफ वेरी गुड बुक्स. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पढ़ा है, जो एक अच्छे राइटर है, वो एक अच्छे रीडर भी है, एक अच्छे स्पीकर भी है और एक अच्छे लिसनर भी है. डू यू अग्री विद माय स्टेटमेंट्स और नॉट? आपको मेरी बातों से आप लोग अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? ठीक है बेटा. रजिया कुछ कहना चाह रही है. हाँ, हैंड रेज. इफ यू अग्री जस्ट से अंगूठा दिखा दीजिए, टिक लगा दीजिए. यस सर, वी एग्री विद यू. थैंक यू वेरी मच. Vocabulary. Oh my God, this is something which is the problem. This is something which is really a problem for students. और देखिए बेटा, पिलर्स में से 1 to 5 आपने कर ली, लेकिन आपके पास गोलियां खत्म हो गई. आप जंग पे निकले, बोलने के लिए निकले, लो भाई वोकैबुलरी खत्म. अभी ऐसा ही होता है सर. हमें सब देखिए सर, आपने जितनी बातें की ना मुझे सब आता है सर. मेरे साथ मसला ही होता है, मेरी वोकैबुलरी खत्म हो जाती है. आई रन आउट ऑफ वोकैबुलरी. I run out of vocabulary and then sir I get stuck. So vocabulary is also a pillar, one of the pillars. साथ साथ vocabulary को भी improve करना है, right? सर vocabulary के ऊपर आप कुछ provide करेंगे? अरे बिल्कुल provide करेंगे. आप क्यों दिल छोटा कर रहे हो? सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना? You have joined SKH. This is not only an organization. You have joined an individual person as well as who is an organization itself, right? So you will definitely find everything here. Sir, अब कुछ बच्चों के मुख्तलिफ सवालात, कुछ आखिरी बातें. साउंड. सर आई वांट टू इम्प्रूव माय एक्सेंट. लंदन चले जाओ बेटा. सर मजाक नहीं कर रही मैं. आई वांट टू इम्प्रूव माय एक्सेंट. हाँ तो मैं भी मजाक नहीं कर रहा. लंदन चली जाओ. गोरा अपनी जबान से कहता है. गोरा अपनी, गोरी मैं कल सुनवा दूंगा. गोरी कह रही है if you want to improve your accent, you just have to imitate a native speaker. और native speaker कहाँ मिलेगा तुम्हें? लंदन में मिलेगा या फिर YouTube पे मिलेगा. उसको सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो और यकीन करो तुम अंग्रेज की तरह बोलना शुरू कर दो. If you copy, if you imitate, there is no another way of improving accent. Accent में अक्सर मैंने देखा है लोग ट्रेनिंग क्लासेस दे रहे होते हैं. वो क्या कर रहे होते हैं? वो तुम्हें नेटिव स्पीकर्स के ही ऑडियो सुना रहे होंगे. एक लोकल स्पीकर तुम्हारा एक्सेंट इंप्रूव नहीं करवा सकता. एक्सेंट कैन बी इंप्रूव विद द हेल्प ऑफ नेटिव स्पीकर्स लैंग्वेज. फ्लुएंसी ये आ जाएगी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने. कुछ बच्चों को 1 महीने में आ जाएगी, किसी के बाद 1 हफ्ते में आ जाएगी, किसी के बाद 1 महीने में, किसी के बाद 2 महीने, 3 महीने. इसका कोई टाइम नहीं है. ऐसी कोई सुबह नहीं होगी जिस दिन तुम सुबह उठोगे और तुम बोलोगे मम्मा गिव मी ब्रेकफास्ट. क्या कहा? मम्मा गिव मी ब्रेकफास्ट. ओ तुम्हें इतनी फ्लुएंसी आ गई तुम्हारे पास. ओ देखिए गुड़िया को
आपके पास फ्लुएंसी आ गई। ऐसी कोई सुबह नहीं आएगी कि आप सुबह उठे और आपको फ्लुएंसी आ जाएगी आपके पास, आप और आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, ऐसी कोई सुबह नहीं होगी। आप मुझसे पूछे सर व्हेन डिड यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द डेट। दिस इज एवरीडे हार्ड वर्किंग, हर रोज की मेहनत आपके अंदर तब्दीली लेकर आती है जो आप देख नहीं सकते। हाँ, 1 महीने बाद उस तब्दीली को आप महसूस कर सकते हैं। एक दिन में आपने क्या सीखा, ये क्या आज मैंने क्या सीखा, मेरे अंदर क्या तब्दीली आई, एक दिन में कोई तब्दीली महसूस नहीं कर सकता। कोई मैकेनिज्म नहीं ऐसा, 1 हफ्ते में भी नहीं कर सकते। गोरा कहता है कम से कम लैंग्वेज लर्नर्स 1 महीने बाद ये बात सोचा करें मैं क्या थी और अब मैं क्या हूं। तो आज से लेकर पूरे अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, इसी तारीख को आप सोचिएगा कि आप कहाँ थी और अब कहाँ हैं। अगर आपको कहीं एक जर्रा बराबर भी आपको इम्प्रूवमेंट नजर आए तो दूसरे मंथ की फीस जमा करा के अपने पैसे और वक्त को जाया मत कीजिएगा। उर्दू लैंग्वेज के साथ ही अपनी जिंदगी को तमाम कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके बाद आपकी जिंदगी में कोई और आसान तरीकेकार लेकर आएगा। इससे आसान तरीका जिस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, इससे आसान तरीके आपके पास आपको कोई इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। हाँ, वो करवाएगा तो फिर वो लोकल मेथड्स होंगे, 2 नंबर तरीके होंगे, उससे फिर इंग्लिश इम्प्रूव होती नहीं है। हम आपको ऑथेंटिक वे पे पढ़ाते हैं, हम उर्दू को फॉलो नहीं करते। जिस तरह से गोरा पढ़ाता है, हम गोरे के मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है सर, हमारे प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाएंगे। यू विल इंप्रूव स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशंस। आई डोंट से दैट यू विल स्पीक लाइक एन अमेरिकन, यू विल स्पीक लाइक अ ब्रिटिशर, बट इंशाल्लाह यू विल इंप्रूव योर स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन। कम से कम आप ये नहीं कह रहे होंगे गो, स्ट्रेट, सकूल, वाज। You will improve all these pronunciations in 3 to 5 months. Right? Clear? Do I sound like an American when I speak in English? क्या मैं, आपको लगता है कि कोई अमेरिकन बात कर रहा है, एक ब्रिटिशर बात कर रहा है? नहीं। We can never sound like an American until we go to America, until we go to native country. हम वहां जाकर रहेंगे, उनके साथ बैठेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, फिर हम उनकी तरह बोलना शुरू करते हैं। ठीक है ना। एक कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है, सर आई गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। अक्सर पहली क्लास में मैं पूछता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है, सर आई गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग। तो उसकी 2 वजूहात होती है, सुन ले। पहली वजह, यू रन आउट ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। मैंने जैसा अभी आपको बताया, आपकी वोकैबुलरी खत्म हो जाती है, आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। जैसे सर उस वर्ड को क्या कहते हैं, या फिर सर इस जुमले को कैसे कहेंगे। अक्सर बच्चे ये कह रहे होते हैं, सर इस जुमले को कैसे कहेंगे, इस वर्ड को क्या कहेंगे। इसका मतलब अगर वर्ड की बात कर रहे हैं, वोकैबुलरी खत्म हो गई, जुमले को कैसे बोलेंगे, तो उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया। और दूसरी एक बड़ी वजह ये भी है, यू आर नॉट यूज्ड टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आप सुनने के आदी नहीं हो और ना आप बोलने के आदी हो। आज से पहले आपने 1 घंटा, शायद बहुत अरसे बाद आपने किसी को बैठ के सुना हो, लेकिन वो भी पूरी अंग्रेजी में नहीं सुना आपने। यू आर नॉट यूज्ड टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एक आदत बनानी अपनी, कि आपको अपने आप को आदी बनाना है सुनने का और बोलने का। तो आपके अंदर ये मसला हल हो जाएगा। कौन सा? आई गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग। आप आदी तो बने पहले सुनने के और बोलने के। और याद रखिएगा, जिंदगी में आपको सबसे पहले जो आपको चीज मिलेगी वो है फ्लुएंसी। क्या मिलेगी? फ्लुएंसी। और उसके बाद आपकी जिंदगी में आएगी एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी के लिए शायद पूरी जिंदगी भी लगा दो तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, क्योंकि ये तुम्हारी जबान नहीं है। हाँ, लेकिन फ्लुएंसी तुम्हारे पास आ जाएगी 1 से 3 महीने के। क्लियर? एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, जरा उसका स्क्रीनशॉट लो। आज का ये असाइनमेंट है आप लोगों का। कल क्योंकि हम साउंड पे बात करेंगे, तो आज मैं देखता हूँ कि आप लोग इसका क्या करते हैं। इन वर्ड्स को आप प्रोनाउंस करेंगे। अब प्रोनाउंस करने से पहले एक ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जब आप इसको प्रोनाउंस कर रहे होंगे, उसकी एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि आपने क्या प्रोनाउंस किए व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज
फिर आप इनको गूगल कीजिएगा। गूगल पे अब बहुत आसान हो गया, गूगल पर लिखकर इनके प्रोनाउंसिएशंस को सुनिएगा, उसके बाद फिर रिकॉर्ड कीजिएगा, फिर दोनों ऑडियो को कंपेयर कीजिएगा और फिर मुझे वो वाली ऑडियो शेयर कीजिएगा जो आपने गूगल में सुनने के बाद रिकॉर्ड की है। क्योंकि जो गूगल के सुनने से पहले करेंगे तो उसमें सारे गलत होंगे आपके। तो जो गूगल पे इसको एंटर करेगा वर्ड को और सुनेगा, मुझे पता चल जाएगा हाँ भाई इसने सुना है। ठीक है ना। तो आज आपके पास रात 12 बजे तक का टाइम है, लाजमी तौर पर इसको सुन लीजिएगा। अगर आपने सुन लिया तो मुझे पता चल जाएगा हाँ भाई इन्होंने सुन लिया। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, आपके पास 2 मिनट। यस ताबिंदा। Sir, only these words are pronunciation. यस, ओनली दीज वर्ड्स। Okay. सिर्फ इन वर्ड्स की मुझे प्रोनाउंसिएशंस चाहिए। आप रिकॉर्ड कीजिएगा और फिर उससे शेयर कीजिएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? Send कर- ये वर्ड इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया। बस। और किसी का कोई सवाल, कोई बात अपनी करना चाहे? लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे का मतलब आज के लिए इतना काफी है।